This conference will now be recorded. Hello student, myself Samadhan Patil, and today we are going to discuss about the remaining three methods to find out the particular integral with the help of shortcut method. Yesterday we have talked about the three methods. कल हमने तीन cases देखे actually particular integral find करने के shortcut method के help से. So first method हमने देखा, first case हमने study किया. अगर हम हमारा function e raised to x हुआ तो क्या करना है? What if our function is e raised to x, okay, then we just replace d by a, and if case fails then we just take the derivative and multiply by x, and we just continue that till we get a non-zero phi of that function. Okay, so we have just discussed a lot about that. We have also seen the examples related with that. Then we come to know some special cases related with the first case. Okay, it is the function is a raised to x, and then after that if function is constant then what? Okay, we have talked about that also. Then उसके बाद हमने सेकेंड केस देखा कि अगर हमारा फंक्शन sin ax plus b और cos ax plus b हुआ तो क्या करना है. So if function is sin ax plus b or cos ax plus b, we have to replace d square by minus a square. How that replacement can be done, that we have seen yesterday. Also we have discussed some examples related with that. Okay, now then after that we have seen the third case, which is as similar to the previous. Okay, the only change is what we are replacing d square by plus a square. हमने d square के जगह पे plus a square डालना है. ओके, इतना ही चेंज है. प्रीवियस केस में हमने माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस किया था. अभी दिस इज माइनस ए स्क्वायर दैट वी हैव रिप्लेस. नाउ इन दिस केस वी हैव टू रिप्लेस plus a square. That is the only change. Okay, now let us see about the next case. Okay, so the case number 3, sorry, case number 4, it is also a very important case. Case number 4. So suppose if your fx is of this form, if fx is equal to x raised to m, means अगर आपका फंक्शन x raised to m हुआ तो क्या करना है. So what to do if our function is x raised to m? Okay, then in that case see, yp is simply, so what is yp? Yp is 1 upon phi of d as usual by the definition into x raised to m. तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं करना है. यहाँ पे हमको ये phi of d न्यूमरेटर में लेके जाना है. Okay, so now take this in the numerator. So what I get, this is equal to, if I take this in the numerator, we know the laws of indices. What are the laws of indices? A raised to m is equal to 1 upon minus a raised to m. Okay, so अगर a का पावर माइनस m हुआ तो अगर वो ऊपर गया तो प्लस हो जाता है. And if that power is like this, a raised to m, then it goes in the numerator with negative power, a raised to minus m. See, it means what? 1 upon a raised to m is same as a raised to minus m. A raised to 1 upon a raised to m, इसकी वैल्यू क्या होगी? a raised to minus m. तो सेम यहाँ पे करना है. Now I just take this phi of d into the numerator. If I take that phi of d into the numerator, then what will happen? So I get like this, phi of d. So this is actually phi of d raised to minus m minus 1 into x raised to m, like this. तो इसका पावर 1 है ना डिनोमिनेटर में. The power of this phi of d is 1 here. Okay, if I take into the numerator, it become minus 1. तो इसको हमने सॉल्व करना है. अभी यहाँ पे केस फेल नहीं होता. So that whatever the case of failure, it is for the first 3 cases only. Okay, now for now moving forward, we don't have the
केस ऑफ फेलियर, अगर इस केस में कहाँ पे भी हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूज कर सकते तो उस टाइम में केस फेल हो सकता है. देयर इट मे हैपन दैट वी जस्ट यूज द अबोव थ्री केसेस इन सम ऑफ द फॉलोइंग. ओके, आगे जो केसेस आने वाले हैं उसमें हम प्रीवियस केसेस यूज कर सकते हैं, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में किया. ओके, सेम यहाँ पे हम कर सकते हैं. तो अभी फाई ऑफ डी इंटू माइनस रेस टू माइनस वन इंटू एक्स रेस टू एम, ये तो हो गया. अभी ये फाई ऑफ डी इंटू फाई ऑफ डी रेस टू माइनस वन है ना, इसका एक्सपांशन करना है हमको. ओके, हाउ दैट एक्सपांशन विल गोज दैट आई एक्सप्लेन. Okay, so we are using here two formulas to use these two formulas. 1 plus y raised to minus 1, ये एक एक्सपांशन है. 1 minus y raised to minus 1, ये दूसरा एक्सपांशन. ये दोनों एक्सपांशन का आपको हम यहाँ पे यूज होने वाला है. तो 1 plus y, so in the previous standard you have seen these expansions, but I just repeat it again so that you can revise or you can remember all that things. So अभी 1 plus y raised to minus 1 का क्या हो जाएगा, देखो एक्सपांशन. So this is 1 minus y plus y square minus y cube plus so on. तो y का पावर यहाँ पे बढ़ता जाएगा और टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Okay, and what is the expansion of 1 minus y? Actually it is all terms are positive. 1 plus y plus y square plus y cube plus so on. So ये आप क्यों दे रहे हैं? ओके, क्योंकि हमको ये सारे एक्सपांशंस यहाँ पे यूज करने, ये दोनों. ओके, दे these two expansion will help us to expand this term phi of d raised to minus 1. इसका एक्सपांशन लिखने के लिए हमको ये दोनों एक्सपांशन यूज करने. So let us see that how we can use that. Let us try to understand it with the help of example. एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं. ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पे. एग्जाम्पल इज डी स्क्वायर प्लस 1 into y is equal to x square. So m is, see this is your function, it is of the form x raised to m. Here m is equal to 2. Am I right? Okay, तो अभी इसका yp क्या हो जाएगा. So yp is equal to 1 upon phi of d, नीचे आएगा आपका डी स्क्वायर प्लस 1. ओके, और यहाँ पे एफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाएगा. तो केस बोलता है कि जो फाई ऑफ डी है, अगर आपका फंक्शन एक्स रेज टू एम टाइप का हुआ तो आपको ये फाई ऑफ डी न्यूमरेटर में लेना है. सो शिफ्ट दैट फाई ऑफ डी इनटू द न्यूमरेटर. सो एंड if we shift that phi of d into numerator, so what will happen? Its sign become, sorry, its power become negative by the laws of indices x square that we have seen previously. So 1 upon a raised to m is a raised to minus m, उसका पावर निगेटिव हो जाता है. तो ये ऊपर जाएगा, उसका पावर निगेटिव हो जाएगा. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 लिखो या ऐसा लिखो, इट इज 1 माइनस डी स्क्वायर, वन ऑफ द सेम थिंग, raised to minus 1 into x square. Now we can expand this with the help of, sorry, 1 plus not minus, with the help of this expansion. देखो 1 plus y raised to minus 1 क्या है आपका, 1 minus y plus y square minus y cube. तो अभी y क्या हो गया आपका, d हो गया यहाँ पे. d square means your y, this is your y, ये जो है आपका y हो गया अभी. So 1 plus y raised to minus 1, तो इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा. So simply y is nothing but here d square. तो 1 plus y का एक्सपांशन यहाँ पे यूज होगा, और 1 plus y का एक्सपांशन आपको पता है 1 minus y plus y square minus y cube so on. Okay, ये चलता रहेगा. This is infinite. This expansion has infinite term. Understand? Okay. तो आपने इनफाइनाइट सीरीज एंड सीक्वेंस जो यूनिट था आपका M2 में, शायद M1 में, यू हैव सीन दैट फॉर दिस कंसेप्ट एक्चुअली, और अदरवाइज यू हैव सीन दिस इन द 12th standard also, 11th or 11th standard. Okay, so let us expand this. What I get then, this is 1, this expansion of this using this formula 1
माइनस वाई, तो वाई आपका डी स्क्वायर है, तो वाई की जगह पे मैं डी स्क्वायर लेता हूँ। ओके, देन उसके बाद प्लस, साइंस अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव है, पहला प्लस दूसरा निगेटिव, दूसरा प्लस दूसरा प्लस, और y का स्क्वायर है तो डी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस तीसरा जो है वो आ जाएगा आपका माइनस होगा, डी स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा, प्लस सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड दिस? एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ओके, तो अभी इसमें ये जो एक्सपांशन है सर, ये तो बहुत टर्म हो गया, हमको हमको भी पता नहीं इसका आखिरी टर्म क्या है। हाउ वी विल मल्टीप्लाई, मीन्स एक्स स्क्वायर ने कितने टर्म को मल्टीप्लाई करना है? ओके, दैट इज डिपेंड ऑन व्हाट, द पावर ऑफ एक्स, वो एक्स के पावर पे डिपेंड है। अभी ये फिलहाल तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज डी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा आपका डी रेज टू 4, एम आई राइट, प्लस सॉरी माइनस ये हो जाएगा आपका डी रेज टू 6 प्लस सो ऑन इनटू एक्स स्क्वायर। ओके, ये रूल आपको पता है, a raised to m raised to n, please my pen is getting disturbed. Okay, so this is n is equal to a raised to m into n, ये रूल के, इसका आंसर जो d raised to 4 लिखा मैंने, इसका आंसर d raised to 6 लिखा, इसका यूज करके लिखा। ओके, तो अभी व्हाट इज d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d हियर? d मींस d by dx, ऑपरेटर d मींस हमको अगर x स्क्वायर ने मल्टीप्लाई किया, ओके, तो x स्क्वायर ने मल्टीप्लाई करता हूं मैं अभी, दिस इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट के पूरे ब्रैकेट को एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो 1 बाय 1 मल्टीप्लीकेशन करो, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, माइनस डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ये यहाँ पे क्या हो गया, डी रेज टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, मैं राइट, डी रेज टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे डी रेज टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस सो ऑन, ये इनफाइनाइट टर्म्स है, अभी हर एक का डेरिवेटिव लेना है क्या सर? अभी डी स्क्वायर मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव, ध्यान में रखो, डी स्क्वायर मीन्स व्हाट, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव, डी रेज टू मीन्स फोर्थ डेरिवेटिव। तो देखो अभी एक्स स्क्वायर का पहला अगर डेरिवेटिव आप लेते हो, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। ओके, और फिर से अब अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव लेते तो आपको मिलेगा ये 2, the second derivative of 2x is 2, and if you go for the third derivative, what I get, d cube by dx square dx cube, it is 0 because the derivative of constant term is 0, and then after that every derivative becomes 0, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा, because fourth derivative of x square is 0, even if third derivative is 0, if third is 0 then automatically 4 6 7 8 all the derivatives become 0 after the third derivative. Okay, so it means what, fourth derivative of x square is 0, sixth derivative of x square is also 0, and the upcoming all derivatives of x square become automatically 0. Okay, तो हमको सिर्फ ये दो terms आगे लेना है, we just retain these first two terms only. So then what I get here, x square as it is minus derivative of x square with second derivative of x square is what, 2. Okay, so this is my x square minus 2, that's it. Okay, plus 0 minus 0 plus 0 so on, and the only answer is what, your yp is equal to x square, this is x square minus 2. Got it? This is your yp. Any doubt? If you have any doubt, then ask me, I will explain, because this is the only case that is somewhat challenging.
in the in the particular integral, okay, to find out with the help of shortcut method. So whatever the sixth method we are going to learn, okay, in the shortcut method, this is only method that will get some confusion in the students. Okay, so if you have any doubt, you can ask me, please. Okay, otherwise we will move forward. So here, one more thing is, you see what the equation is automatically or fortunately d square plus 1. Okay, so d square plus 1 is our equation, so we can easily convert that equation in the form of 1 plus y. 1 plus y में easily हम उसको ले सकते. बट अगर ऐसा ऐसा अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स आपका जो फाई ऑफ डी है, वो सपोज ऐसा होता है. In some cases, most of the example have this type of equation. Suppose it is d square plus 2d, or it is like this. Suppose it is minus 2d plus 3 into y. Suppose this is equal to x. अभी x ही लेता हूँ. जितना पावर बढ़ेगा उतने टर्म्स आएंगे आपके एक्सपेंशन में. अगर यहाँ पे x क्यूब होता तो यहाँ पे टर्म बढ़ जाते हैं, ये ध्यान में रखो. जितना पावर x का होगा उतने ज्यादा टर्म आपके एक्सपेंशन में आएंगे. ओके, तो आपके एक्सपेंशन में कितने टर्म आएंगे, ये जो एक्सपेंशन बोल रहा हूं मैं, ये इसमें से कितने टर्म आपको लेने हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, ये x के पावर पे डिपेंड करता है. अभी x का पावर 2 था, इसलिए मुझे 2 ही टर्म लेने की जरूरत पड़ी. अगले टर्म 0 हो गया ऑटोमेटिकली. ओके, सो इफ x क्यूब इज देयर, स्टिल द फोर्थ डेरिवेटिव इज 0. तभी हमको दो ही टर्म लेने की जरूरत थी, x क्यूब होता तो. हाँ, अगर x रेस टू 4 होता तो ये भी हमको लेना पड़ता, d रेस टू 4. Okay, so that is the part of derivative. You should have the practice of that actually. Okay, तो अभी इसका देखते हैं, इसका क्या करना है. यहाँ पे तो वन रेडीमेड नहीं है, जैसे पिछले एग्जांपल में वन रेडीमेड था. सर आपने 1 प्लस वाई कर लिया, उसको 1 प्लस डी स्क्वायर कर लिया. बट हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ 1 प्लस समथिंग. ओके, 1 प्लस समथिंग में कन्वर्ट करना ही है अगर ऐसा फंक्शन आया तो. Otherwise we cannot use that for case. Okay, so to convert this in the form of 1 plus, what will I do? So this is yp is equal to 1 upon, it is d square minus 2d plus 3 into x हो जाएगा. अभी ये सब कैलकुलेशन आपको डिनोमिनेटर में करके लेना है, और वो देन वी जस्ट शिफ्ट इनटू द न्यूमरेटर. जब तक आपको 1 प्लस नहीं मिलता तब तक आपको वो न्यूमरेटर में लेना नहीं है. Okay, so if you got 1 plus y in the form of 1, if the phi of d get converted in the form of 1 plus y, then and then shift it into the numerator. Otherwise don't do that. Okay, so try to first convert that phi of d in the form of 1 plus y, and then shift it. Now here our phi of d is not in the form of 1 plus phi. Okay, so therefore what I get, देखो अभी कांस्टेंट की जगह पे अगर मुझे 1 चाहिए तो यहाँ पे तो मैं 1 नहीं ला सकता, d है, यहाँ पे भी नहीं ला सकता. तो बेटर वे जो कांस्टेंट है आपका, वहां पे 1 लाना है मुझे. तो अगर वहां पे 1 लाना है तो मैं क्या करूंगा, वो कांस्टेंट कॉमन ले लूंगा. ओके, सो सी व्हाट हैपन देन इफ आई टेक 1 अपॉन दैट माई, इफ आई टेक 3 कॉमन. ओके, तो क्या हो जाएगा, माइनस हुआ तो भी चलेगा, -3 कॉमन ले लो, डोंट टेक अटेंशन. ओके, -3 आप कॉमन ले सकते हो. तो अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो डी स्क्वायर माइनस 2d, ये पूरे टर्म को 3 डिवाइड को चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है कॉमन लेने के लिए, ये दोनों टर्म में 3 नहीं है. अगर हुआ तो कॉमन ले लेंगे, बट यहाँ पे नहीं है तो उनको डिवाइड में 3 जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा +1 into x. Got it?
तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 एज इट इज 1/1 प्लस ये हो गया आपका y अभी d² माइनस 2d डिवाइडेड बाई 3 ओके into x like this. Any doubt? तो ये मिलने के बाद देखो अभी क्या हो जाएगा, ये जो 1 प्लस वाई के फॉर्म में अभी रिड्यूस हो गया, ये न्यूमरेटर में ले सकते हैं। मैंने बताया जब तक 1 प्लस वाई के फॉर्म में रिड्यूस नहीं होता तब तक आपको नहीं लेना है वो न्यूमरेटर में। नाउ यू कैन टेक दैट इन द न्यूमरेटर, सो आई गेट 1 प्लस 1/3 into 1 plus it become d² minus 2d by 3, okay, raised to -1 into x. Now we can expand that with the help of that formula we have discussed earlier, 1 plus y. Okay, so this is equal to what, 1/3 as it is. Now this is your y, ये पूरा आपका y हो गया अभी, ये y 1 plus y का expansion आपका 1 minus y, expand that, so this is 1 minus y as it is होगा d² minus 2d divided by 3, ओके, प्लस अगली टर्म में उसका स्क्वायर होगा d² minus 2d divided by 3 स्क्वायर, ओके, और सो ऑन, टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगला टर्म आपका माइनस होगा, ओके, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर एंड इनटू x वहां पे ऐसे। तो इस एक्सपांशन में कितने टर्म आएंगे देखो, वो देखते हैं हम अभी। x का पहला डेरिवेटिव आपका आ जाएगा इंटू x इज इक्वल टू 1, और सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और सेकेंड डेरिवेटिव के बाद में जो भी टर्म होंगे उन सब का डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा, ओके। तो अगर ये एक्सपांड करते हो आप d² माइनस 2d ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, d² स्क्वायर मीन्स d रेज टू 4 हो जाएगा, माइनस दोनों का प्रोडक्ट इंटू 2 मीन्स 4d³ एंड प्लस 4d², तो मिनिमम टर्म d² है और ये भी 0 हो रहा है, x ने मल्टीप्लाई किया तो ये भी टर्म नहीं आएगा एक्सपांशन में, और इसके आगे की कोई टर्म नहीं आएगी, देयर इज नथिंग आफ्टर दैट in the expansion, okay. So try to understand this will definitely help you to solve this or to understand this expansion. Now I'm just retaining the only first two term of this expansion, this is 1/3 as it is 1 minus, it is simply d² minus 2d, okay. So it is simply d² minus 2d divided by 3 into x. आपको टेक्स्ट बुक में खाली ये टर्म के बाद ये टर्म मिलेगा, ये टर्म लिखने के बाद खाली ये नहीं मिलेगा। तो बहुत बार बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर 1 प्लस d² माइनस 2d डिवाइडेड बाई 3 है, और यहाँ पे 1 माइनस सडनली कैसे आएगा, साइन कैसे चेंज हो गया। तो बहुत बार बच्चे ऐसा लॉजिक लगाते हैं कि यहाँ पे माइनस है ना सर, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे माइनस करके ये टर्म लिख दिया। इट इज नॉट लाइक दैट, okay, try to understand the reason behind that. So here we are expanding this, but because of this x we are not retaining the remaining terms, they are automatically become 0, ये टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा अगर हमने x से मल्टीप्लाई किया, और अगर ये टर्म 0 हो गया तो पूरे टर्म आगे के 0 हो जाएंगे, बिकॉज एज वी गो फॉर द हायर डेरिवेटिव फॉर x दे बिकम ऑटोमेटिकली 0, सिर्फ पहला डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसमें भी ये जो टर्म है ये भी 0 हो जाएगा आपका, this term also becomes 0 because second derivative of x is also 0, x का second derivative देखा हमने वो 0 होता है, d² means second derivative of x, okay.
So it is nothing but what? It is 1 by 3 as it is. X ने multiply कर दो अभी. 1 into x is x minus 1, sorry, d square minus 2d divided by 3 into x हो जाएगा यहाँ पे. इसने मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. ओके, लाइक दिस. नाउ अभी देखो ये तो जीरो हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. सो दिस इज सिंपली व्हाट? दिस इज इक्वल टू 1 by 3 as it is into x minus in bracket d square of x is 0 minus 2 into first derivative of x is 1 that we have seen. Okay, divided by 3 as it is, bracket complete. तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा. इट इज 1 by 3 in bracket x minus minus become plus 2 by 3. That is your final YP. Okay, so in this case or otherwise you can write this 1 by 3 फिर से कॉमन ले सकते हैं. 1 by 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3x plus 2. ये कैलकुलेशन का पार्ट है. ये इतना रखा तो भी चलेगा. Okay, so hope you understand. If the function, if your phi of d is like this, then what to do? Okay, आपने 3 कॉमन लेना है और उसके बाद आपको 1 plus y का टर्म मिलेगा, वो एज इट इज न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है. गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस you can ask. Okay, this is the most confusing case in the shortcut method. Okay, but hope you understand that I have explained in very simple language. Okay, as the power of goes increasing, okay, that we have to calculate more and more things. Okay, तो आपका fx ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार ऐसा भी fx आता है. So fx not even the power of x, it may be like this, x square plus x plus 1. तो ये भी यहाँ पे ले सकते हैं हम अभी. खाली x नहीं होगा, यहाँ पे x square plus x plus 1 भी हो सकता है. It is also the algebraic function. Okay, so that we will discuss detail in some common examples. Okay, the questions may be there for the common examples also. Okay, like this function. Now move to the next case. It is second last case actually. So case number 5. What is the case number 5 actually? If fx is equal to, आपका fx ऐसा हुआ अभी, this is equal to e raised to ax into v. This is also an interesting case where v is what? Where v is a function of x. ये v x का फंक्शन होगा. e raised to x into sin x हो सकता है, e raised to x into x square हो सकता है, e raised to x into x हो सकता है, whatever it is. Okay, तो अगर ऐसा हुआ आपका फंक्शन, then what we have to do? So yp is simply here, your yp is 1 upon phi of d into e raised to ax into v. आपको क्या करना है? जहां पे d है देखो, we are replace d by d plus a. जहां पे d है वहां पे d plus a रिप्लेस करना है. और a कौन सा है आपका? This is your a. Okay, now just I am going to replace that, and after replacing that what we have to do? We just shift this e raised to ax outside. ये बाहर लिख लेना है. Once if you done the replacement, okay, so then the work of e raised to ax is over. ये e raised to x का काम हो जाएगा. आपको बाद में वो e raised to x की तरफ देखना नहीं है. ओके, तो 1 upon phi of d plus a into v ऐसा हो जाएगा. और ये आपको फिर क्या सॉल्व करना है using first 4 cases. Okay, this is the only case. This is the only part in this case. Okay, so I'm repeating once again. So what we have to do? We are replacing d by d plus a, where a is the power, it is in the
पावर ऑफ ई। ओके, यहाँ का ये जो ए है आपको लेना है, वो यहाँ पे डी प्लस ए रिप्लेस करना है। अगर ये माइनस हुआ, सपोज ई रेस टू माइनस टू एक्स इज देयर, तो डी के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे आप, डी माइनस टू। गॉट इट। अगर ये ई रेस टू टू एक्स हुआ, तो डी के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे आप, डी प्लस टू। ये टू के ए के पावर पे ए के साइन पे डिपेंड करता है। ओके, माइनस हुआ तो डी माइनस टू, प्लस हुआ तो डी प्लस टू, वॉट एवर दैट। ओके, और once if you did that displacement, then just shift that e raised to x outside, its work is over, and then operate that phi of d whatever we get after calculating in on the v. Again, v is our function of x. इसका एग्जांपल देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। So example I will take for suppose d square minus 2d plus 3 into y is equal to e raised to 2x into e raised to x लेते हैं, e raised to x into sin x suppose। ये ऐसा मिला है मुझे, तो क्या करना है, तो yp मिलेगा मुझे। देखो yp is very simple, it is 1 upon b square minus 2d plus 1 into e raised to x into sin x। अभी v means what, your v means sin x, or your a is nothing but 1, e raised to ax, a means 1। now we have to replace what, replace d by d plus 1, जहाँ पे d है वहां पे d plus 1 रिप्लेस करना है, is d square plus 3 not 1, sorry for that। okay, now let us do that। now we are going to do the replacement, shift that e raised to x, e raised to x outside, wherever your d, replace it by d plus 1 bracket square minus 2 into d प्लस 1। देखो जहाँ पे d है वहां पे d प्लस 1 रिप्लेस करें हम, प्लस 3 इंटू साइन एक्स, v लिख डाला मैंने एज इट इज, जैसे केस में लिखा है। देखो यहाँ पे v है तो e रेज टू एक्स तो बाहर निकल लिया, जहाँ पे d था वहां पे d प्लस a डाला, और v पे वो अभी ऑपरेट करना है। अभी डिनोमिनेटर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। okay, so solve that denominator, what I get, it is equal to e raised to x 1 upon, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे, ये एक्सपांशन करो अभी, a प्लस बी का एक्सपांशन क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्सपांशन यूज करो, d प्लस 1 मीन्स क्या मिलेगा, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, अभी ये प्रोडक्ट कर डालो, माइनस 2d माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू साइन एक्स। मुझे लगता है बहुत सिंपल हो जाएगा, देखेंगे। अभी प्लस 2d और माइनस 2d गेट कैंसल। ओके, 1 माइनस 2 मीन्स व्हाट, okay, 1 minus 2 is minus 1 plus 3 is plus 2, so this is simply what, e raised to x 1 upon d square plus 2 into sin x। इस स्टेप तक अगर किसी को प्रॉब्लम होगा देन आस्क, नो प्रॉब्लम। ओके, एनी डाउट, बिकॉज ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है while solving the example with the help of case number 5। okay, so that replacement is important, and after replacement, not only the replacement, after replacement you have to shift that e raised to x outside, और उसके बाद उसका कहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसका सिर्फ रोल क्या है, d के जगह पे d प्लस a रिप्लेस करना। once if you do that replacement, then shift that e raised to x outside, and उसके बाद आपका v का रोल चालू होता है। ये जो है आपका v है, sin x, ये v है। अभी देखो सेकेंड केस में देखा है हमने, यहाँ पे सेकेंड केस यूज होगा। अभी सेकेंड केस में क्या देखा है हमने, अगर आपका फंक्शन sin x प्लस b हुआ तो आपको क्या रिप्लेस करना है, तो आपको डी स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर रिप्लेस करना है। देखो
replace d square by minus a square that we have seen earlier. ओके यहाँ पे वो रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा हमारा जो फंक्शन है अभी ये साइन ax है. ओके नाउ अभी a here 1, a is 1, so now a is equal to 1. अभी यहाँ से रोल चेंज हो गया, यहाँ से केस चेंज हो गया, खाली ये सॉल्व करने वाले हैं हम अभी, इसका काम हो गया. ओके अभी इसको सॉल्व करने के लिए केस नंबर 2 के पास जाना पड़ेगा हमको. केस नंबर 2 बोलता है कि जहाँ पे डी स्क्वायर है यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस करो. अभी a मीन्स 1 है आपका, दिस इज a इज 1, इट्स स्क्वायर इज 1, उसका अगर स्क्वायर लिया हमने तो वो मिल जाएगा 1 और मल्टीप्लाइड बाय माइनस, और उसको माइनस में मल्टीप्लाई करना है. तो ये मिल गया आपका माइनस ए स्क्वायर. ठीक है तो माइनस ए स्क्वायर मिल गया आपको -1. बी स्क्वायर के जगह पे -1 रिप्लेस करना है. सो दिस इज सिंपली व्हाट e रेज टू x in bracket 1 upon -1 plus 2 into sine of x as it is. Okay. Now after this so what I get, this is equal to अभी e raised to x as it is हो जाएगा. तो 1 अपॉन -1 plus 2 मीन्स अभी 1 अपॉन ये 1 हो जाएगा into sin x. So this is simply what e raised to x into sin x. This is your yp simply. Okay तो ये आपका yp मिल गया. This is very simple. Okay e raised to x into sin x. तो ये हो गया आपका 5th केस. ओके और 6th केस की अगर हम बात करते हैं, केस नंबर 6, तो ये बोलता है हमको कि अगर आपका फंक्शन ऐसा हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू e raised to sorry x into v. Okay if your function is x into v then what? into v ये रफ करना है. Suppose the function is like this x into v, then what we do for this? Okay तो अभी या इस केस में हमको क्या करना है, sorry for that my pen getting disturbed here, just take it again. So case number 6, so if fx is equal to e raised to it is x into v. ओके तो यहाँ पे yp मिलेगा आपको, yp इज इक्वल टू 1 अपॉन फाई ऑफ डी so this is equal to 1 upon phi of d just a minute. If your fx is equal to x into v, where v is again a function of x, okay, then your yp is simply
1/phi of d into x into v। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको x माइनस डेरिवेटिव लेना है फाई ऑफ डी का, फाई डैश ऑफ डी डिवाइडेड बाय फाई ऑफ टी इंटू वी, ऐसा करना है। तो ये थोड़ा अलग केस है। ओके, सो जस्ट यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ डी and then retain that phi of d as it is in the denominator and multiply by v. Okay, so if you take the example for this, what I get, suppose it is d square plus 2d plus 1 into y is equal to, suppose it is x into e raised to x, e raised to 2x। तो ये दोनों केस यूज कर सकते हैं, 5 यूज करते हैं, 6 भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपली yp मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 1/d square minus, sorry, plus 2d plus 1 into x into e raised to 2x। तो यहाँ पे हमको ऐसा लेना है, दिस इज yp इज इक्वल टू x एज इट इज लिखा, माइनस डेरिवेटिव लिया फाई ऑफ डी का, इट इज 2d plus 2 divided by phi of d as it is 2d square plus 2d plus 1 into e raised to 2x। क्योंकि ये रिप्लेसमेंट जब आप करते हो तो ये इस x का काम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी फिर भी यहाँ पे 1/phi of d आएगा, एक बार सॉरी फॉर दैट, दिस इज 1/d square plus 2d plus 1 यहाँ पे भी आएगा। तो ये सॉल्व करना है, तो x minus 2d plus 2 as it is, ओके, डिवाइडेड बाय, आपको मिल जाएगा यहाँ पे d square plus 2d plus 1 इंटू, अभी पहला केस डी स्क्वायर, डी के जगह पे ए रिप्लेस करना है, e रेज टू ax है, तो 1/, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू e रेज टू 2x। ओके, सो दिस इज इक्वल टू x as it is minus 2d plus 2 divided by d square plus 2d plus 1 ब्रैकेट कंप्लीट। और ये जो अगर कैलकुलेट किया आपने 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 9, यहाँ पे 1/9 e raised to 2x आ जाएगा। ओके, तो 1/9 तो बाहर हो गया। ओके, इन ब्रैकेट x ने मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2x इज e raised to x, e raised to 2x माइनस यहाँ पे 2d प्लस 2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू e raised to 2x, ऐसा मिल जाएगा। और फिर से एक बार क्या करो आप, e raised to 2x यहाँ पे अप्लाई करो। ओके, तो इस e raised to 2x को अगर हमने यहाँ पे रिप्लेस किया तो फिर से आपको मिल जाएगा 1/9 x e raised to 2x माइनस यहाँ पे ये 2d प्लस 2 एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय 9 आ जाएगा e raised to 2x, क्योंकि सेम रिप्लेसमेंट यहाँ पे किया है हमने, सेम रिप्लेसमेंट आई हैव डन हियर। ओके, तो और ये इसने मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो tomorrow we will discuss in detail about this example। Okay, so if you have any doubt, so you can ask, otherwise we'll discuss tomorrow with detail example। Okay, we will discuss this example once again। Thank you।